So I'm connecting. So if partners fail to make a written agreement, वो लोग एग्रीमेंट बनाना ही नहीं, बनाना भूल गए, डायरेक्टली पार्टनरशिप आए बिना एग्रीमेंट के, विदाउट रिटन एग्रीमेंट, तो उनको क्या एप्लीकेबल होगा? देन व्हाट विल बी फॉलोड इन देयर केस? तो उनका कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हम कहाँ से फॉलो करेंगे? देन व्हाट वी विल फॉलो इन देयर केस? ओरल क्या फॉलो करेंगे? जल्दी बोलो। ओरल ओरल एग्रीमेंट नहीं होता ना, ओरल कल कोई डिस्प्यूट में जाएगा तो क्या फॉलो होगा उनके? ओरल एग्रीमेंट करके कुछ नहीं होता है। सी, एग्रीमेंट मींस एनीथिंग व्हिच हैज अ लीगल वैलिडिटी। ओरल एग्रीमेंट को कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है ना, ओरल एग्रीमेंट डज नॉट हैव अ लीगल वैलिडिटी। तो क्या करोगे? Then in that case, Partnership Act is applicable to them. Partnership Act of 1932 will be applicable with all amendments till date. Is that clear? Clear है? Yes. Any doubt? No, ma'am. So, Partnership Act क्या क्या बताता है? Partnership Act talks about all appropriation out of profit. Partnership Act talks about all appropriations to profit. अभी ये ना आप लोग लिखना भी है मेरे साथ साथ. As per Partnership Act, interest on capital is nil. Partner is not entitled to receive any interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. अगर पार्टनरशिप डीड बोल रहा है तो मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट सेज निल. इफ समवन इज फॉलोइंग पार्टनरशिप एक्ट तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज निल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is also nil. Interest on loans and advances means अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है या एडवांस दिया है तो then partner is entitled to interest and that interest rate is 6% per annum. कितना इंटरेस्ट मिलेगा? It will be 6% per annum. Salary or commission to partner, as per Partnership Act, they are not entitled to any salary or commission. And last, profits or losses are shared equally. अगर आपने प्रॉफिट लॉस रेशियो पार्टनरशिप स्टार्ट होते हुए डिसाइड नहीं किया, मींस देन योर पार्टनरशिप you will be sharing as a partner profits and losses equally. Partnership Act says that if PSR is not decided, then it has to be shared equally among the partners. This is all given in Partnership Act. कहाँ दिया हुआ ये? Partnership Act में. ये कब applicable होता है? When there is no partnership deed. अगर partnership deed नहीं बनाई है partners ने, तो then they will be then Partnership Act will be applied, and as per Partnership Act, interest on capital is nil, interest on drawing is nil,
इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, इफ पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू बिजनेस, देन 6% per annum. Salary or commission will be nil. Profit and losses will be shared among partners equally. When Partnership Act is applicable, Partnership Act कब applicable होता है? When will be the Partnership Act applicable? जल्दी बोलो. जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तब. जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है. करेक्ट. प्रणव एंड जयेश बोथ वेरी गुड. जयेश को लगता है शाम को ही लेक्चर बैठने को टाइम मिलता है, दिन में तो रहता नहीं है. बराबर ना जयेश? अगर पार्टनरशिप एक्ट हम फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम लोग पार्टनरशिप एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे चार्ज होगा? नील पे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस रेट पे चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट पे चार्ज होगा? योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज ऑन व्हाट रेट? नील. Interest on loans, interest on loans and advances, 6% per annum. Whether partners will be entitled to any salary or commission? Partners को कोई salary या commission मिलेगा क्या? If they do not have any agreement for that. If partners have framed no agreement for salary or commission, whether they are entitled to any salary or commission as per Partnership Act? Nil. If they have not decided profit sharing ratio, then what will be the profit sharing ratio applicable to them? Profit sharing ratio क्या होगा? Equal. यहाँ तक सब clear है? Is it clear till here? Any doubt? Anyone? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एंड कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशियोज या किस परसेंटेज में दिया जाता है इन एज पर पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से. Next, if partnership deeds speaks about interest on capital, then such interest will be calculated, then such interest will be calculated on opening capital. तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है तो वो कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग कैपिटल पे या क्लोजिंग कैपिटल पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is always charged for 6 months. आपको पता है ना इसका लॉजिक क्या है? अभी नॉर्मली पार्टनर क्या करता है ना, एवरी मंथ ड्राइंग करता है, एक साथ ड्राइंग नहीं करता है. सो दिस इज जनवरी, दिस इज फेब्रुअरी, दिस इज मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. दिस इज मंथ्स. अभी नॉर्मली पार्टनर्स क्या करते हैं, एवरी मंथ देयर इज अ ड्राइंग. पार्टनर्स अपना घर खर्चा चलाने के लिए हर महीने बिजनेस में से पैसा निकालते हैं. सो एवरी मंथ द पार्टनर इज ड्राइंग 5,000. तो ये 5,000 पे, ये जो 5,000 है इस पे 11 मंथ का इंटरेस्ट आएगा. यहाँ पे हमारा अजम्पशन दो हो सकता है. एक ये अजम्पशन हो सकता है कि ये 5,000 बिगनिंग ऑफ द मंथ में निकाला है, एक हो सकता है एंड ऑफ द मंथ में. अगर हम अज्यूम करें कि बिगनिंग ऑफ द मंथ में, तो ये 12 मंथ का इंटरेस्ट आएगा. सेकेंड मंथ के बिगनिंग में निकाला है तो इस पे 11 मंथ का इंटरेस्ट आएगा. देन इस पे 10 मंथ का इंटरेस्ट आएगा. मार्च से अगर आप दिसंबर तक कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मंथ इज 10. अप्रैल से कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मंथ्स तो इट इज 9. सो एवरी, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1. तो ऐसे उसको हर महीने के ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट आता है. एंड इफ वी टेक एवरेज ऑफ दिस, ही विल बी पेइंग इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स. कितने मंथ्स का इंटरेस्ट वो पे करेगा? he will be paying average for 6 months. समझ में आया? देखो, पहले मंथ की बिगनिंग में उसने 5,000 निकाला, तो मंथ के बिगनिंग में निकाला था, पहले मंथ के बिगनिंग में, तो 12 महीने का पूरा इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा, तो 12 मंथ्स. सेकेंड मंथ के बिगनिंग में निकाला, मीन सेकेंड से लेके उसको 12 मंथ्स तक 11 मंथ का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. ऐसे करके उसको हर महीने एक एक महीने कम का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. अभी इसका अगर आप टोटल करो और डिवाइड बाय 12 करो तो यू विल गेट 6. इसका टोटल आता है 78. डिवाइड बाय 12 कितना होता है? एक्चुअली वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट मंथ के एंड में विड्रॉ किया है. 78 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? एनीवन? 6.5. इसके लिए ऑन एन एवरेज वी ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ्स. कितने मंथ के लिए चार्ज करते हैं? 6 मंथ्स के लिए. अगर आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम, इसका मतलब आप 10% तो लगाओगे, लेकिन उसको फिर 6 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे. किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 मंथ से. इज इट क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. समझा ही नहीं है शायद किसी को. समझा नहीं ना आप लोगों को? देखो, आप पहले महीने में ब्याज पे पैसा लेते हो, तो उस पे जब इंटरेस्ट भरते हो तो उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट भरोगे. फिर से अगले महीने अगर पैसा लिया तो एक महीना कम, एक महीने के बाद लिया ना, तो 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. इज इट क्लियर? So this is how we calculate interest. Interest on drawing is always calculated on an average for 6 months. Salary to partner is an appropriation that goes as per partnership deed. Agar partnership deed is silent, then no salary will be paid to partner. पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी. ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने आता है ना? See, we prepare in final accounts, trading account, profit and loss account,
Then we prepare profit and loss appropriation account. ये जो भी हमने देखा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, these are all part of appropriation. ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉसेस, these are all appropriation. ये P&L appropriation अकाउंट में आता है. कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, appropriation अकाउंट. एंड लास्ट इज बैलेंस शीट. मतलब मैं एक बार P&L appropriation अकाउंट आपको बताती हूँ. आप लोगों ने किया है 12th में प्रॉफिट एंड लॉस appropriation अकाउंट? आई एम डाउटफुल कि किया होगा किसी ने. पर्टिकुलर्स अमाउंट किया था? वेरी गुड. अक्षु बोलती है नहीं, प्रणव बोलता है यस. कौन से कॉलेज से पढ़े हो आप? दोनों अलग अलग कॉलेज से पढ़े हो? प्रणव कहाँ से पढ़े हो आप? सो सीबीएसई. ओके, सीबीएसई में है. बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और यहाँ पे हम दिखाते हैं सारे एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन क्या क्या होता है? टू सैलरी टू पार्टनर. अभी दो पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल ए को भी सैलरी दे रहे हो, बी को भी दे रहे हो, तो वो अमाउंट आएगा इधर. मतलब जो भी पेमेंट हम पार्टनर को करते हैं वो सारा आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. कहाँ आता है? इट कम्स इन योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Is that clear? अभी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is again payment to partner. A, B. By interest on drawings. A, B. So whatever we pay to partner, अभी जो भी प्रॉफिट फाइनली बचेगा वो भी पार्टनर को जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट. दिस नेट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर A एंड B. So these are all appropriations. ये क्या है? आपके appropriations है. समझ में आया? Is it clear? Yes, no. Yes, ma'am. नैन्सी अच्छा यस बोल के, बाकी सब सोए. सुबह सोते हो ठीक है, अभी दोपहर को शाम को भी सोते हो? हाँ, हुआ प्रॉब्लम क्या है? ओके, now okay. Now we'll be looking into adjustments of final accounts. See, adjustments in final accounts are of different types. One are book adjustments. Others are errors to be rectified. ये book adjustment, that is final account adjustments, and some are errors to be rectified. हमने गलती से कुछ error कर दिया, जब final accounts बनाते हुए हमको समझा कि हमसे ये error हो गया, हम उसको rectify करते हैं. तो सबसे पहले ना हम लोग book adjustments करते हैं आज.
Let us do first book adjustments. I would also like to understand कि आप लोगों को journal entries आती हैं कि नहीं आती. So this is your adjustment. हमने TY 12th हम लोगों ने trading and P&L balance sheet effect. And if it's possible for you, I would like to know the journal entries also of all adjustment entries. Let me see आप लोगों को आती है क्या. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस को. We'll try to learn something more now than what we already know. सीखने को रेडी हो आप लोग कुछ नया? Yes, Are you all ma'am. ready to learn something new? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's see then. First adjustment, आपकी favorite adjustment, that is closing stock. Closing stock का पहले तो impact बताओ और फिर हम उसकी journal entry की बात करेंगे. Closing stock. Closing stock का इफेक्ट कहाँ आता है? दो इफेक्ट क्या होते हैं क्लोजिंग स्टॉक के? Closing stock is an adjustment. You have to give me double effect. Trading account credit side and balance sheet account asset side. Balance sheet is not an account. Balance sheet is a statement. हाँ. Balance sheet क्या है? Statement है. Sorry, ma'am. Statement. तो trading credit and balance sheet में asset side. Can someone tell me why balance sheet asset side? स्टॉक एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में क्यों नहीं दिखाते? यस, क्या हो गया? मैम स्टॉक इज assets ना. हम्म, asset है ना वो स्टॉक, इसलिए. बचा हुआ गुड्स जो सेल नहीं हुआ वो मेरा एसेट है, इसके लिए हम उसको एसेट साइड में दिखाते हैं. वेरी गुड. यस, प्रणव ने लिखा है क्योंकि उससे इनकम आने वाला है फ्यूचर में. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. ठीक है, फ्यूचर एनीथिंग दैट जनरेट्स इनकम फॉर यू इज एन एसेट. दैट इज आल्सो नाइस. दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एसेट. व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड? व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड? अगर आपको इसका आंसर आ गया ना तो आपको जर्नल एंट्री भी आ जाएगी. Yes, anyone? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों लिखता है? आप लोगों ने कभी सोचा क्या? यू हैव बीन डूइंग दिस एडजस्टमेंट सिंस योर 11th स्टैंडर्ड. जब से आपने बीके करना चालू किया तब से आपने पहले एडजस्टमेंट जो सीखी होगी वो क्लोजिंग स्टॉक की सीखी होगी, राइट? सो डिड यू एवर आस्क योर टीचर के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं? अच्छा, आप लोगों ने एक चीज देखी है, एमए में जब हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट याद है कि भूल गए? डू यू रिमेम्बर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट? याद है आप लोगों को?
किसी को याद है आप लोग उसमें क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट क्या देते थे? डू यू रिमेम्बर वर्टिकल फॉर्म? किसी को नहीं याद है? शुड आई शो यू? आप लोग क्या इफेक्ट देते थे? देखो सही पेज निकला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जब प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तब हम लोग कंजम्पशन लेते हैं। स्टॉक का क्या लेते हैं? कंजम्पशन। क्या हमने कितना स्टॉक कंज्यूम किया, हाउ मच स्टॉक डिड वी कंज्यूम। कंज्यूम मीन्स कितना स्टॉक हमने यूज किया। तो हम लोग क्या कर रहे थे? क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में से माइनस कर रहे थे। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब भी यही है कि आप परचेज में से उसको माइनस कर रहे हो। परचेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, इधर आप लिखते हो टू परचेज, यहाँ पे आप लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? मतलब इन शॉर्ट आप क्या कर रहे थे? परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे थे, क्योंकि जितना आपने एक्सपेंसेस इनकर किया वो सारा एक्सपेंसेस ये साल यूज नहीं हुआ है, उसमें से कुछ स्टॉक बच गया जो नेक्स्ट ईयर यूज होने वाला है। इसके लिए हम क्या करते हैं? परचेज में से माइनस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज में से माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री होनी चाहिए? What should be the entry for closing stock? जल्दी बोलो। What should be the journal entry for closing stock? अभी आपने ही बोला stock is an asset. An asset has a debit balance. Asset has a debit balance. मतलब closing stock should be debited. Closing stock account debit. परचेज में से माइनस करना है, मतलब परचेज डेबिट होता है, माइनस करना है तो मैं क्रेडिट करूंगी टू परचेजेस। This is the entry for closing stock. Closing stock account debit. Closing stock क्यों debit किया? Because it is my asset. Purchases क्यों credit किया? क्योंकि ये सारा purchases जितना भी मैंने किया था वो पूरा यूज नहीं हुआ, उसमें से जो बच गया वो closing stock है, इसके लिए purchases को credit किया। Purchases उतना मैंने कम कर दिया, उतना मेरा actual expenses ये साल हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर में ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं ओपनिंग स्टॉक करके दिखाने वाली हूँ। In the next year, this closing stock will become my opening stock. तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आज मेरा एसेट है, नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग बनेगा तो मेरा एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट विल बिकम माय एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? यस नो? Yes, हाँ ना? ma'am. आधे लोग तो भाग रहे हैं, सीखना ही नहीं है किसी को एक्स्ट्रा। सीखोगे नहीं तो कैसे चलेगा? एक तो लाइटनिंग भी हो रही है। टुमारोज लेक्चर एट 11 ना? सेकेंड, अभी देखते हैं आप लोग को ये आता है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इफेक्ट बोलो फटाफट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट बोलो। What will be the effect of outstanding expenses?
किया है ना आप लोगों ने? यही तो अभी आपके एमसीक्यूज में यही सब आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट बोलो। एनीवन? बाप रे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड टू एक्सपेंसेस, add to expenses and liability side, correct? आउटस्टैंडिंग अगर सैलरीज दिए तो हम सैलरी में ऐड करते हैं और लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? कैन यू टेल मी मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? एनीवन? What do you mean by outstanding expenses? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि ये साल का एक्सपेंसेस था, मैंने पे नहीं किया, तो वो मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया। यस, एक्सपेंसेस जो इस ईयर करने थे बट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एम्प्लॉयज को सैलरी देनी थी 12 मंथ्स की, एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी 12 मंथ्स की, लेकिन मैंने एवरी मंथ होने के बाद सैलरी देते हैं, तो एक महीने की सैलरी मार्च तक नहीं पे की। मार्च की सैलरी मैं अप्रैल में दूंगी, मार्च की सैलरी आई पे इन अप्रैल, तो मार्च में वो आउटस्टैंडिंग हो गई। मार्च सैलरी विल बी पेड इन अप्रैल। मार्च सैलरी विल बी पेड इन अप्रैल। अगर मार्च की सैलरी हम अप्रैल में पे करेंगे, वी पे द सैलरी ऑफ मार्च इन अप्रैल, तो मार्च ईयर एंडिंग के लिए वो आउटस्टैंडिंग हो गई। मार्च की सैलरी मार्च में ही पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं अप्रैल में पे करने वाली हूँ, तो दैट इज माय आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एक इफेक्ट होता है कि ऐड टू एक्सपेंसेस और दूसरा इफेक्ट होता है लाइबिलिटी साइड को। तो इसका इम्पैक्ट बताओ, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या होगी? कैन एनीवन ट्राई? कैन एनीवन ट्राई? कोई ट्राई कर सकता है? यस, कोई ट्राई करेगा? नो वन? अभी आपने एक्सपेंसेस में ऐड किया, मतलब डेबिट किया, एक्सपेंस को डेबिट किया, और अगर लाइबिलिटी साइड दिखा रहे हो, इफ यू आर शोइंग इट ऑन द लाइबिलिटी साइड, मींस इट इज क्रेडिट। एंट्री विल बी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखाऊंगी ना लाइबिलिटी साइड। So entry is expenses account debit to outstanding expenses. Now prepaid expenses.
इफेक्ट बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होगा? प्रीपेड मतलब क्या? एडवांस में पे किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपेंसेस एडवांस में दिया है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ राइट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्या करते हो? इफेक्ट क्या देते हो? आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं एक्सपेंसेस में, तो प्रीपेड को क्या करते हैं? प्रीपेड को क्या करते हैं? माइनस। माइनस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। यस वेरी गुड, क्योंकि आपने आने वाले साल का पे किया है और आने वाले साल का मैं ये साल के अकाउंट में नहीं दिखा सकती, तो उसको माइनस करती हूँ। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाती हूँ? सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाती हूँ? Where do I show second effect? Asset side. Asset side. Asset side. हाँ, अभी एंट्री बनाओ। Prepaid expenses is your asset. Asset has which balance? Asset को कौन सा बैलेंस होता है? Asset has which balance? Debit balance. मतलब prepaid expenses should be debit. मतलब prepaid expenses debit होना चाहिए. Yes or no? Yes, ma'am. Entry Yes, will be ma'am. prepaid expenses account debit. टू एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस प्रीपेड किया है वो एक्सपेंस। इसका मतलब ये भी एक चीज आपको समझनी है कि एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये दो अलग अलग अकाउंट है। दिस आर टू सेपरेट अकाउंट्स। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Clear. एनीवन, एनी डाउट? No, ma'am. आई विल कंटिन्यू No. टुमारो। कल के दिन में हमको एडजस्टमेंट कंप्लीट करनी है। ओके, टुमारो 11 o'clock। ओके, कल Okay, 11 बजे। चलो बाय बाय, सी ऑल, टेक केयर, Bye, ma'am. बाय।